اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ وما ابرئ، اس پارے کے اندر سورہ یوسف ہے۔ اس سے پہلے سورہ ہود گزر چکا، جس کے اندر اللہ رب العالمین مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم عاد، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم سمود، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم مدین، اور اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح مختلف پیغمبروں کے واقعات و حالات گزرے۔ تو اس زمانے میں یہودی لوگوں نے اعتراض کیا، قوم عاد و سمود کے حالات عرب کا بچہ بچہ واقف ہے، اس میں کیا معجزہ ہے؟ اس لیے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، اس کے جوابات آپ دیں کہ بنی اسرائیل مصر میں جانے کا سبب کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کا کیا معاملہ ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیوں پہنچے؟ اس طرح کے سوالات یہودیوں کی طرف سے کچھ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ان لوگوں کے جواب میں تفصیلی ایک واقعے کو اللہ تعالی بیان کیے ہیں سورہ یوسف کے اندر۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت، اور اس سورے کے اندر بہت کچھ عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ احسن القصص فرماتے ہیں، یعنی واقعات میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس سورے کے اندر اللہ تعالی مختصر سے ہم بیان کریں گے، 3 لوگوں کے خواب ہیں اور اس کی تعبیر ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، جس کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ دوسرا خواب 2 قیدیوں کا، جس کی تعبیر خواب دیکھنے کے 3 دن کے بعد ظاہر ہوئی۔ اور مصر کے بادشاہ کا خواب تقریباً 14 سال تک اس کا وقت رہا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں اور اپنے باپ سے ارشاد فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا یہ خواب، اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کریں۔ اس کے بعد حالات گزرتے گئے، ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے باپ سے ان کو جدا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد بھائی آ کر کہنے لگے
कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। इस तरह झूठ का सहारा लेकर अपने आप को उन्होंने बचाने की कोशिश की और कहने लगे, वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे हैं लेकिन आप यकीन करने वाले नहीं हैं। इस तरह झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की उन्होंने कोशिश की। आज भी जितनी भी बातिल ताकतें हैं सब झूठ ही का सहारा लेते हैं। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर अजीज मिस्र के हाथ फरोख्त कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में रहने लगे। अजीज मिस्र के बीवी के गलत इरादे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मादी नियामतों के साथ साथ नबूवत भी अता की और तकरीबन 9 या 12 साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में रहे और उनके साथ 2 कैदी भी दाखिल हुए। उन्होंने एक मर्तबा ख्वाब देखा, एक ने देखा, एक उसमें से शाही दरबार का साकी था, शराब निचोड़ने वाला था, दूसरा बावर्ची था। ये दोनों कैद खाने में आपके साथ थे। तो एक मर्तबा उन्होंने ख्वाब देखा, एक ने बयान किया मैं शराब निचोड़ रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं सर पर रोटियां उठाए हुए परिंदे उससे खा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बयान की। एक को साकी को दोबारा उसी काम पर मामूर होने की ताबीर बताई और बावर्ची को सूली पर लटकाने की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई। और 3 दिन के बाद वकूफ ज़िर हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा मेरा तज़किरा बादशाह के पास करना, लेकिन उसने भूल गया। बाद में एक वक्त ऐसा आया, मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायों को दुबली पतली गाय 7 मोटी गायों को दुबली पतली गाय जो है निगल खा रही है और इसी तरह 7 हरी भरी बालियां और दूसरी सूखी बालियां। तो बादशाह ने इसकी ताबीर बताने का ऐलान मिस्र में किया। तमाम मुआब्बिर माजरत करने लगे। किसी ने अज़गास व अहलाम कहा, किसी ने इसकी कोई ताबीर नहीं है, इस तरह के बातें कहने लगे। उस वक्त साकी को याद आया तो बादशाह के सामने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पहुंचे बादशाह के दरबार में और ताबीर बताई और मुल्क के इस अजीम मसले को हल करने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया और फरमाया, क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। मुझे इस तमाम मामले को हल करने के लिए मुल्क का एक अजीम ओहदा, खजाना मिस्र के खजाने का ओहदा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानने वाला हूं और उन तमाम को बेहतर तरीके से हिफाजत करने वाला हूं। तो इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदगी में 2 बड़े बड़े इनकलाब आए कि गुलामी से बाइज्जत जिंदगी मिली, दूसरी चीज कैद खाने से नजात पाकर बादशाह की हमनशीनी मिली। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीर खजाना बने और इस तमाम मामले को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। और इससे जाहिर होता है कि हुकूमत का आला से आला ओहदा हासिल करने की जरूरत पड़ी तब भी पीछे नहीं हटना चाहिए और खुद अपनी सलाहियत का इजहार करके लेना चाहिए। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम
मिस्र के अजीम ओहदे पर फाइज हुए, बाद में चलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बने। और जब उनके भाइयों ने कहत के जमाने में अनाज लेने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आए, और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी तदबीर से अपने एक भाई को रोक लिया, और उसके बाद आखिर में तमाम खानदान कबीले को मिस्र आने की दावत दी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदगी के वाक़ये में बहुत कुछ इबरत का सामान हमें मिल रहा है। किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से जवानी तक कुर्बानियों पर कुर्बानियां देते गए, बड़े बड़े मुश्किल मराहिल को पार किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस मकाम तक पहुंचाना था, उस मकाम को किस तरह अल्लाह ताला असबाब को मुहैया करते हुए वहां तक उनको पहुंचाया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। किस तरह सब्र और तहम्मुल के साथ जेल के सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए और बहुत कुछ इल्जामात अपने ऊपर उठाए हुए आखिरकार उस अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे की किस तरह अपने तमाम भाइयों के दरमियान सुरखरुई मिली है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। इस तरह मक्के वालों की और मक्के के यहूदियों की जो ख्वाहिश थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को बयान करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकलीफ देने की नीयत से इस तरह के सवालात करते थे। अल्लाह ताला पूरे वाक़ये को बयान करके उनका जवाब भी अल्लाह ताला इस सूरे के अंदर दे दिए हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे मौजूदा हालात में किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काम किया है, उससे आज भी हमें सबक मिलता है। क्योंकि कुरान पाक क़यामत तक आने वाले ईमान वालों की रहनुमाई और हिदायत कुरान की एक एक आयत के अंदर, एक एक वाक़ये के अंदर अल्लाह ताला रखकर है। इस तफसीली वाक़ये को हम अपने उलमा और अइम्मा के जरिए से मसाजिद के अंदर हम इसके दर्स कुरान शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह ये वाक़या तफसील के साथ आप मालूम होगा। बहुत कुछ इबरत की चीजें इसके अंदर, नसीहत की चीजें, और किस तरह हमें काम करना है, ये सारे नसीहत जो है इस सूरे से हमें मिल सकती है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक को खुद पढ़ने की, अपने बच्चों को पढ़ाने की और इसके मानी मतालिब के साथ जो है जानने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।